Good morning, student. Today we will discuss range in some part of domain. So if the question is like that, if domain of fx is like that, if domain of fx is close interval 0 to 1, then find domain of first question is f of 2x plus 3. Second question is f of 3x minus 1. Third question is f of greatest integer x. And fourth is f of e power x plus f of e power log of e mod x. See, question is what given? The domain of fx is 0 to 1. That means value of x is lies between 0 and 1. अच्छा value of x is lies between 0 and 1. मैंने कहा yes, value of x is lies between 0 and 1. Okay, that means we want to find the domain of this function. मैंने कहा yes, that means value of x is, this value is lies between 0 and 1. Okay, that is 2x. Question number first, 2x plus 3 is lies between 0 to 1. We want to find the domain of this function. Okay, what is the value of x? X is 2x plus 3. So 2x plus 3 is lies between 0 and 1. So 2x is minus 3 minus 2. So x is minus 3 by 2 and minus 1. Means domain of this function is minus 3 by 2 to minus 1. Clear? Next, second question is we want to find the domain of f of 3x minus 1. Okay, we want to find the domain of 3x minus 1. मैंने कहा yes, we want to find the domain of this finally. Domain of fx is this. So x is, here is x and here is 3x minus 1. That means 3x minus 1 is between 0 and 1. So 3x is between 2 and 1. That is x is between 1 by 3 to 2 by 3. That means domain of the function is 1 by 3 to 2 by 3. This is your answer. Now we want to find the domain of this function. Okay, domain of this function, मैंने कहा yes बेटा. Third question, f of greatest integer x. Here x is between 0 and 1. So greatest integer x is between 0 and 1. तुमने कहा yes 0 and 1. बेटा इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो मैं इस रिमूव को x को हटा दूं तो मैं ऐसा कह दूं x is less than 2. X is less than 2 and automatically greatest integer x is equals to 1. Okay, that means x is less than 2. Is not equal to 2. Equal to 2, if it is here equal to 2, then greatest integer of 2 is 2. So it is only less than. And 0, that is 0, 0 as it is. So domain of this function is 0 to 2. So domain is 0 to 2. 0 close and 2 open. This is your answer. अब बेटा मुझको डोमेन फाइंड करना इसका. अच्छा, इसका डोमेन फाइंड करना. मैंने कहा यस, डोमेन ऑफ एफ ऑफ ई पावर एक्स प्लस एफ ऑफ लॉग ई मोड एक्स. ओके, पहले हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, फिर इसका डोमेन फाइंड करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे. ओके, डोमेन ऑफ ई पावर एक्स इज, तुमने कहा 0 to 1. 0 to 1, मैंने कहा यस बेटा.
अब बेटा देखो ये e की पावर x 0 to 1 कहाँ से कहाँ तक होता है? e पावर x का ग्राफ बना है बेटा, तुमने कहा यस e पावर x लाइक दैट। e पावर x 0 कहाँ पे होता है? माइनस इन्फाइनाइट, दैट मीन्स x इज बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट टू हियर इज 1 कहाँ पे होता है? 0 पे। Taking log both sides, so log 0 plus is minus infinity and log 1 is 0. Okay, this is okay. इसका मतलब बेटा ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट एंड इट इज 0. सो आवर इंटरेस्ट इन दिस पार्ट, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें. ये तो केस आ गया. अभी ये केस रिक्वायर्ड है, ये केस रिक्वायर्ड है. तुमने कहा यस log e mod x is between 0 and 1. That means e power 0 is mod x e. Here is mod x is between 1 to e. बेटा ये x is greater than 1 and mod x is less than equally. X is greater than 1, that means this way or this way, this way. तुमने कहा यस दिस वे, ये तो आ गया. अब नेक्स्ट है बेटा mod x इज लेस देन e, मीन्स x इज बिटवीन माइनस ई टू प्लस e. तुमने कहा माइनस ई टू प्लस e, माइनस ई कहाँ बेटा? तुमने कहा यहाँ पे, और प्लस e कहाँ पे? तुमने कहा यस हियर इज प्लस e. सो आवर इंटरेस्ट इन प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें? प्लस में. अब बेटा देखो कॉमन पार्ट क्या है? सी कॉमन पार्ट ऑफ दिस, दिस एंड दिस. सो दिस इज द कॉमन पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट, दिस इज आवर आंसर. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू या डोमेन बिलोंग्स टू माइनस e क्लोज इंटरवल, -1 it is also close interval. This is your answer. I think it is clear now. अब बेटा देखो, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे रेंज फाइंड करनी है. माय क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. फंक्शन ऐसे दे दिया एफ एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स. मुझे इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है. तुमने कहा अच्छा इस रेंज इसका फाइंड करना है. मैंने कहा यस, बट इसका डोमेन फाइंड करते हैं. फॉर फाइंडिंग डोमेन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0. दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड x इज लेस देन इक्वल 9. बेटा ये कह रहा 3 से ग्रेटर, ये कह रहा 9 से, और दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन होना चाहिए. मीन्स x की वैल्यू 3 से ग्रेटर और 9 से कम, मीन्स डोमेन बिलोंग्स टू 3 to 9. ये तो मेरा डोमेन आ गया. तुमने कहा ओके ये डोमेन है, अब मुझे इसका रेंज रिक्वायर्ड है. अच्छा रेंज रिक्वायर्ड है. मैंने कहा यस मुझे इसकी रेंज चाहिए. तुमने कहा यस हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे. अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करें? तुमने कहा इसकी रेंज फाइंड करने के लिए पहले इसका डिफरेंशियल करें एफ डेस एक्स. तुमने कहा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स एंड -1. तुमने कहा सर इसका अपने डिफरेंशियल का अप्रोच क्यों अप्लाई किया? मैंने कहा बेटा देखो मेरे पास केवल डोमेन आ गया, अब इससे मैं कहीं कोई रूट ही नहीं पता पड़ा. मुझे इसका ग्राफ क्लियर हो जाए ना, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मुझे कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कब एफ डेस एक्स 0 है, कब डिक्रीजिंग है. तो मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अप्रोच चाहिए. इसका लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशियल किया और देखा ये कहाँ पे 0 है. तुमने कहा इट इज़ इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स बेटा ये कितना हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस 3
इक्वल अंडर रूट 9 माइनस एक्स, ये हो गया बेटा तुमने कहा यस। इसको सॉल्व करें तो बेटा ये कितना आ गया, दैट इज x माइनस 3 इक्वल कितना 9 माइनस एक्स, दैट इज 2x इक्वल 12, सो x इक्वल कितना 6। अच्छा x इक्वल 6, मैंने कहा यस x इक्वल 6, बेटा ये x इक्वल 6 आ गया, तुमने कहा यस x इक्वल 6। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, डोमेन 3 to 9 है, तुमने कहा यस। अब इसको मैं अगर देखूं बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मुझको देखेंगे आप यहाँ से थोड़ा सा, इसको अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूं, इसको 0 किया मैंने, 6 से कम पे ये वैल्यू कैसी होगी, तुमने कहा 6 से कम पे वैल्यू, मैंने कहा यस। 6 माइनस 3, 6 से कम पे कोई वैल्यू सोचता हूँ मैं, 5, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 1/2 रूट 2 और x की जगह 5, 9 माइनस 1/4, तो कौन ग्रेटर है, तुमने कहा ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये 1/2 रूट 2 है और ये 1/4 है, ओके 1/4 है, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव, मीन्स इफ x इज लेस देन 6 मीन्स x इज बिटवीन 3 to 6, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और 6 to 9 देखेंगे ये कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग। तुमने कहा पता कैसे किया, मैंने कहा बेटा मैंने x की जगह अगर मैंने 6 से आगे 7 रखा तो 9 माइनस 7 that is root 2, 1/2 root 2 minus 1/2 root 2, and here is 7 minus 3, 1/4, 1/4 minus 1/2 root 2, that is 1/4, और ये 1/2 root 2, that is you get negative values, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग AOD जब पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा, अभी मुझे थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को यूज कर रहा हूं मैं। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो इसका ग्राफ देखता हूं मैं, ग्राफ इसका मुझे कह दिया, मैंने कहा बेटा x इक्वल 3 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा x इक्वल 3 पे, x इक्वल 3 रखा तो 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 3 रूट 6, तुमने कहा यस। अब बेटा अगर मैं कह दिया रूट 6, तुमने कहा यस रूट, और x इक्वल 9 पे वैल्यू, तुमने कहा x इक्वल 3 पे वैल्यू रूट 6 है और x इक्वल 9 पे वैल्यू भी रूट 6 है, 9 माइनस 3 दैट इज रूट 6 और 9 माइनस रूट, अच्छा 3 और 9 पे वैल्यू क्या है, रूट 6 है, और 6 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा 6 पे वैल्यू 6 माइनस 3 दैट इज रूट 3 एंड 9 माइनस 6 दैट इज रूट 3, 2 रूट 3, हियर इज 2 रूट 3, x इक्वल 6 है तो ये बेटा कितना है 2 रूट 3, ओके 2 रूट 3। तो बेटा ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कैसा फंक्शन, तुमने कहा इंक्रीजिंग, फिर वापस डिक्रीज हो जाएगा, तुमने कहा यस। तो आप देखो बेटा x इक्वल 6 पे फंक्शन की वैल्यू क्या कितनी, तुमने कहा 2 रूट 3, और इस पे एफडेस 6 कितना आ रहा है, तुमने कहा 0 आ रहा है, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आ गई। अब मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है, अच्छा रेंज रिक्वायर्ड है, मैंने कहा यस रेंज रिक्वायर्ड है, दैट इज रेंज बिलोंग्स टू बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी, तुमने कहा रूट 6, और मैक्सिमम कितना, तुमने कहा 2 रूट 3, दिस इज योर आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह देता बेटा, वो कहता फाइंड द रेंज ऑफ log ऑफ 2 रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, तुम्हें कहते इसकी रेंज बताओ, तुमने इसकी तो रेंज फाइंड कर ही लिया बेटा, इसकी रेंज फाइंड कर ली, तुमने कहा यस। अब इसकी रेंज रिक्वायर्ड है तो इसमें y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बस log ऑफ 2, मिनिमम वैल्यू कितनी, तुमने कहा रूट 6, 2 log ऑफ 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 2 रूट 3, बेटा ये हमारी रेंज आ जाती है, बस लॉग अप्लाई करना पड़ता। और मैंने बेटा इसमें कोई इनक्लूडिटी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि बेस 2 है और बेस 2 मतलब बेस की वैल्यू लॉग की 1 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई, बहुत आराम से इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है, तुमने कहा अच्छा रेंज रिक्वायर्ड है, मैंने कहा यस, fx इज 5x स्क्वायर अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2, तुमने कहा बेटा रेंज इसकी रिक्वायर्ड है तो एक बेस वे बेटा y इक्वल दिस, मल्टीप्लाई करें 7x स्क्वायर वाई प्लस 2y इक्वल 5x स्क्वायर, दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 5x स्क्वायर, मैंने कहा यस। अब बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं कि x स्क्वायर 5 माइनस 7y इक्वल 2y, तुमने कहा यस, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y अपॉन
5 माइनस 7y। तुमने कहा यस। अब बेटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, वी नो दैट। तुमने कहा यस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। बेटा इसको अपन ऐसे कहते हैं 2y अपॉन 7y माइनस 5 इट इज लेस देन इक्वल 0। माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। बेटा ये कहाँ पे? तुमने कहा y इक्वल 0 और ये कितना? 5/7 प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? लेस में। मीन्स y बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा 0 to 5/7। 5/7 को मैंने ओपन में रखा है क्योंकि डाउन में बेटा 0 नहीं है, इक्वलिटी होल्ड नहीं होती। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो y बिलोंग्स टू 0 to 5/7, ये हमारा आंसर आ गया। अब मेरी एक बात और सुनो ध्यान से। तुमने कहा सर इसको और कैसे डील कर सकते हैं? मैंने कहा बेटा इसको डील करने का तरीका और कोई मेथड है क्या? मैंने कहा यस आई हैव ए अल्टरनेट मेथड। तुमने कहा m2 इक्वल बेटा मेथड 2। बेटा अपन इसको ऐसे कहते हैं 5x स्क्वायर y इक्वल 5x स्क्वायर प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता हूँ। तुमने कहा 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो बेटा मैंने 5/7 और ये 7x स्क्वायर कर दिया। तुमने कहा यस, मैंने ऐसा कह सकता हूँ 5/7 7x स्क्वायर 7 स्क्वायर। बेटा इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तुमने कहा अच्छा 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट? मैंने कहा यस। y इक्वल 5/7 और कितना बेटा 5/7, ये कितना हो गया 1 माइनस 2/7x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझको कि हाईएस्ट वैल्यू x स्क्वायर की क्या होगी? इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। ओके, सो y बिलोंग्स टू 5/7, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओपन और क्लोज क्योंकि इन्फिनिटी है इसलिए ओपन। अच्छा लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या होती है? तुमने कहा लोएस्ट वैल्यू? मैंने कहा हाँ बेटा इसकी लोएस्ट वैल्यू। तुमने कहा बेटा इसकी लोएस्ट वैल्यू तो 0 होती है। अच्छा एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया तो 1 माइनस 2/2 दैट इज 0, तो 0 to 5/7। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा मुझे ये करा है कि fx इक्वल टू e पावर x अपॉन 3e पावर x प्लस 5, इसकी रेंज चाहिए। तुमने कहा इसकी रेंज रिक्वायर्ड है? मैंने कहा यस मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल फाइन करते हैं, इक्वल टू y करते हैं। बेटा 3e पावर x इंटू वाई प्लस 5y इक्वल कितना 2e की पावर x, दैट इज e पावर x 2 माइनस 3y इक्वल 5y। सो e पावर x इज इक्वल्स टू 5y अपॉन 2 माइनस 3y। और e पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इक्वल टू 0 होता है कि तुमने ना? इक्वल टू 0 नहीं होता। मैंने कहा ठीक है बेटा इक्वल टू 0 भी नहीं होता है। ओके इक्वल टू 0 नहीं होता है तो बेटा मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, यहाँ 3y कोफिशिएंट वेवी कर्व मेथड से। बेटा 5y अपॉन 3y माइनस 2 इज लेस देन 0। तुमने कहा यस। और रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये कहाँ 0 हो रहा है बेटा? एक तो 0 पे और एक 2/3 प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? माइनस में। मीन्स y बिलोंग्स टू 0 to 2/3। दिस इज योर आंसर। तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड है क्या? मैंने कहा अल्टरनेट मेथड भी है बेटा, मेथड 2, सेम अप्रोच, डिट्टो वही अप्रोच। तुमने कहा कौन सी? मैंने कहा बेटा ये 2 है ना, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तुमने कहा 2/3 3e पावर x, अब इसमें 5 ऐड किया और 5 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 3e पावर x प्लस 5, सब अब एलिमिनेट कर देता हूँ। 2/3 एंड दिस इज 1 माइनस 5 ऑन 3e की पावर x प्लस 5। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसका ग्राफ देखे तो हाईएस्ट वैल्यू तो इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। तो एक तो वैल्यू 2/3 आ गई। ओके y बिलोंग्स टू 2/3।
अब दूसरी वैल्यू चाहिए बेटा, लोएस्ट वैल्यू क्या, तुमने कहा 0, ओके, तो ये 0 किया तो 1 माइनस 5/5 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओपन क्यों किया, क्योंकि एग्जैक्टली e की पावर x की वैल्यू 0 नहीं आती, इट इज टेंडिंग टू 0, मतलब 0 प्लस h। तुमने कहा अच्छा, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल ले लिया, आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तुमने कहा नो इश्यू, बहुत सिंपल है, इसको टर्म्स में बेटा 4 mod xy माइनस 3y इक्वल 3 mod x प्लस 5। बेटा इसको ऐसे कह दो, mod x कॉमन ले लो तो 4y माइनस 3 इक्वल 3y प्लस 5। सो mod x इक्वल कितना बेटा 3y प्लस 5 अपॉन 4y माइनस 3। ओके बेटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, मैंने कहा बिल्कुल बेटा। अब बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ये कहाँ पे बेटा, तुमने कहा 3/4, और ये कहाँ पे, तुमने कहा माइनस 5/3, प्लस माइनस प्लस। अब हमारा इंटरेस्ट किस में, तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट, मैंने कहा हाँ बेटा हमारा इंटरेस्ट, तो तुमने कहा बेटा ये नेगेटिव में हमारा इंटरेस्ट, पॉजिटिव इंटरेस्ट है, कोई परेशानी नहीं बेटा, हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो हमारे पास बताओ y बिलोंग्स टू क्या आया, तुमने कहा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 5/3। 5/3 ओपन या क्लोज, तुमने कहा बेटा क्लोज, बिकॉज अपर साइड में है, तुमने कहा यस। और बेटा 3/4 तुमने कहा ये ओपन टू इन्फाइनाइट, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा सर इसके अलावा और कोई आंसर आ सकता है, मैंने कहा नहीं बेटा इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेथड, मैंने कहा बेटा जो मेथड पहले डिसाइड किया था, जो अपन ने सॉल्व किया था, द सेम मेथड इसमें भी अपन अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया मुझे, fx इक्वल साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, रेंज बताओ, रेंज ओके। यार देखो ये पाई का मल्टीपल आ रहा है, मतलब आएगा हमेशा पाई का मल्टीपल, और पाई का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, तुमने कहा 0। अब 1 आया तो भी साइन पाई, 2 आया तो 2 पाई, 3 आया तो 3 पाई, इस तरह, क्योंकि बिकॉज इट इज इंटीग्रल वैल्यू। ओके इसका मतलब एफ वाई बिलोंग्स टू सिंगलेटन सेट ओनली, दैट इज 0। तुमने कहा अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल एफ एक्स इक्वल साइन π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके। तो बेटा देखो अब इसमें अपन ग्राफ बनाएं तो देखो बेटा इसका सीन ऐसा ऐसा देखो, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब बेटा रेंज क्या हो सकती है, तुमने कहा बेटा अगर ये 1 होता तो साइन π/2 1, अगर 2 होता तो साइन पाई दैट इज 0, और 3 होता तो 3π/2 कितना -1, और वापस 4 होता तो बेटा 2 पाई वापस 0, तो इसी साइकिल में चलेगा। तो इसमें y की वैल्यू यही आने वाली है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा अगर मैं ऐसे कह दूं y इक्वल साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, बेटा मुझे कहते हैं इसका रेंज बताओ। अब बेटा इसको देखें तो a कितना है 1 ग्रेटर देन 0, और d कितना 4 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज लेस देन 0। तुमने कहा अच्छा लेस देन 0, मैंने कहा यस, 4 माइनस 4 इंटू 3 लेस देन 0। अरे बेटा ये लेस देन 0 है, इसका मीनिंग कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तुमने कहा यस, और इस ये पाई का मल्टीपल है, तुमने कहा यस, इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया, सिंगलेटन सेट ओनली 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब बेटा क्वेश्चन में आया मोड ऑफ साइन x प्लस मोड ऑफ कॉस x, इसकी रेंज चाहता हूं। तुमने कहा मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स, मैंने कहा यस मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तुमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने कहा क्यों, तुमने कहा इस बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा अच्छा बेटा मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स, पहले इसका पीरियड देखें बेटा। तुमने कहा पीरियड तो बेटा इसका π/2 है, ओके, मीन्स ये एफ एक्स बेटा, मैंने कहा f0 तुम कितना, उसने कहा 1, f π/2 तुम कितना, उसने कहा 1, ओके। और बेटा इन दोनों को 0 और π/2 के बीच में बेटा ये 0 पे भी ऐसा है, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो बेटा कुछ इस तरह आएगा। मैंने कहा हाँ ये बेटा ऐसे, तो 0 पे x इक्वल 0 पे और x इक्वल π/2 पे, 0 पे कितना y इक्वल 1, तो इन दोनों के बिटवीन
x इक्वल पाई बाई 4 पे कितना? तुमने कहा बेटा f पाई बाई 4, मैंने कहा यस f पाई बाई 4। तुमने कहा f पाई बाई 4 बेटा कितना? 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 दैट इज √2। ओके, तो ये y की वैल्यू √2 आ गई। इसका मीनिंग क्या हो गया? रेंज क्या आ गया? रेंज बिलोंग्स टू, तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू आ गया मेरे पास 1 to √2। ओके, 1 to √2, मैंने कहा यस। तुमने कहा सर ये थोड़ा सा आपने जो मेथड बताया ये ओके है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं दिखा। ये तो आपने ग्राफ बना दिया, आपको समझ में आता है, लेकिन हमें नहीं समझ में आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेट मेथड है आपके पास, मेथड 2। बेटा y इक्वल कितना है? तुमने कहा मोड साइन x प्लस मोड कॉस x। तुमने ओके। अच्छा बेटा मोड x का मतलब क्या होता है? तुमने कहा √x स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करता हूँ, y स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर x। इसका स्क्वायर कितना? तुमने कहा कॉस स्क्वायर x प्लस 2 मोड साइन x मोड कॉस x। तुमने कहा यस। तो y स्क्वायर इक्वल कितना? 1 प्लस, बेटा इसको ऐसे कह सकता हूं 2 साइन x कॉस x का मोड। तुमने कहा यस। तो बेटा y स्क्वायर इक्वल कितना? 1 प्लस मोड साइन 2x। अब y स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी? तुमने कहा 2, और लोएस्ट वैल्यू कितनी? तुमने कहा 1। अच्छा, y स्क्वायर साइन 2x की हाईएस्ट वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, और लोएस्ट वैल्यू तुमने कहा 1। इसका मतलब y किसके बिटवीन? तुमने कहा 1 और √2 के बिटवीन। बस हमारा आंसर आ गया। मीन्स रेंज बिलोंग्स टू 1 to √2। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बहुत आराम से समझ में आ चुका है तुम्हें। अब बेटा क्वेश्चन में ऐसे आ जाए y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, इसकी रेंज बताओ। तुमने कहा बेटा इसकी रेंज तो आप देखो साइन x की वैल्यू किसके बिटवीन आती है? तुमने कहा -1 से +1, तो बेटा इसका मतलब साइन x बेटा -1 to +1 आता है। इसका मीनिंग है कि कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू लेगा? तुमने कहा 1 लेगा, -1 लेगा, 0 लेगा और 1 लेगा, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तुमने कहा यस। अगर मैं ऐसा बोलता फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड साइन x प्लस मोड कॉस x, इसकी रेंज बताओ। तुमने कहा यस इसकी रेंज। अब बेटा मोड साइन x प्लस मोड कॉस x, अभी अभी क्वेश्चन किया मैंने, इट इज बिटवीन 1 to √2। तो बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड साइन x प्लस मोड कॉस x इज व्हाट? तुमने कहा 1 से √2 के बीच में वैल्यू तो क्या होती है? 1। दैट मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 ओनली। अगर बेटा क्वेश्चन ऐसा होता फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 साइन x प्लस कॉस x, अब मुझे कहती है इसका रेंज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके बेटा अपन ऐसे कहें 3 साइन x प्लस कॉस x, इट इज लाइज बिटवीन 9 + 1 एंड माइनस √9 + 1। That means 3 sin x plus cos x is between √2 and it is minus √2, minus √10। अब बेटा मुझको ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x चाहिए, 3 sin x plus cos x। तो बताओ ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तुमने कहा इट इज y इक्वल्स बिलोंग्स टू, बेटा क्या क्या हो सकती है? तुमने कहा -√2 मतलब -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग टू माइनस वैल्यू मीन्स मैं इसको ऐसे कहते हैं -3 पॉइंट समथिंग टू y इज √10 3.1। अब बेटा ये -3.2 -3.1 to 3 -3, अरे बेटा ये तो -4 आएगा, और -3 से -2 -3, फिर -2, फिर -1, 0 1 2 और 3, बस। क्या 4 आएगा? तुमने कहा नहीं, 3.1 है तो 3 से इस तरफ ही आ जाएगा वैल्यू। तो ये बेटा हमारे पास रेंज आ गई। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई।
अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। ओके रेंज रिक्वायर्ड है बेटा। इसका सबसे पहले इसका पीरियड देखो बेटा। तुमने कहा पीरियड कितना, तुमने कहा इसका पीरियड पाई है। ओके अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी तरीके से डील करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारा अगर टी और पाई है, तुमने कहा यस टी इक्वल पाई है, तो अपन देखें बेटा इसका ग्राफ अगर एक्स की जगह जीरो रखता हूं तो बेटा जीरो रखता हूं तो जीरो साइन जीरो, एफ जीरो कितना, ये एफ एक्स है। तुमने कहा बेटा एफ जीरो कितना, तुमने कहा एफ जीरो इज 4 और एफ पाई कितना, तुमने कहा एफ पाई, मैंने कहा हाँ बेटा एफ पाई दैट इज इट इज इक्वल टू 4 आल्सो। अच्छा जीरो और पाई पे 4 पे पाई पे दोनों पे वैल्यू सेम है। मैंने कहा अच्छा क्योंकि पीरियड है बेटा पाई है। ओके अब बेटा मैंने कहा यार जीरो और पाई पे तुम्हारा ग्राफ कैसा, जीरो पे पाई, अगर मैं बेटा साइन जीरो रखूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तुमने कहा 4। ओके 4 आ गया मेरे पास। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जाता हुआ वापस इस पे आएगा। तुमने कहा अब बेटा मुझको बताओ ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। तुमने कहा अच्छा मिनिमम वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा ये मिनिमम वैल्यू, ये देखो y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y इक्वल 4 है। अब बेटा ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का खेल खेलना है। तुमने कहा बेटा x इक्वल 0 पे भी 4 है, तुमने कहा अच्छा x इक्वल 0 पे 4 है और x इक्वल पाई पे भी 4 है। ओके x इक्वल पाई पे भी वैल्यू 5 है। ये बेटा ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी, तुमने कहा बेटा ये मिनिमम वैल्यू y इक्वल 3 होगी और y इक्वल 3, तुमने कहा यस y इक्वल 3। ये y इक्वल 3 कब होगी, तुमने कहा बेटा y इक्वल 3 तब होगी जब x को मैं बात करूं, मैं x की बात करूं, कैसी बात करूं, तुमने कहा बात ऐसे करो। इस क्वेश्चन को समझाना पड़ा बेटा। अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तुमने कहा अच्छा इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना, तो देखो बेटा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका ग्राफ अगर बन जाए तो हमारा काम बन जाए। तुमने कहा अच्छा ग्राफ, मैंने कहा हाँ बेटा इसका ग्राफ बन जाए तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो बेटा देखो ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं या कैसे ग्राफ बनाता हूं इसको थोड़ा सा समझें, या अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, अपन डायरेक्ट भी इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता, पहले प्रॉपर तरीके से बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से ढंग से इसको देखो बेटा। मैंने कहा बेटा x की वैल्यू अगर मैं 0, इसका पीरियड बेटा देखा जाए तो इसका पीरियड पाई होता है। तुमने कहा अच्छा पीरियड पाई है, तो बेटा मैं x की वैल्यू अगर 0 से 90 के बिटवीन ले रहा हूं, तुमने कहा 0 से 90 लोगे तो बेटा y कितना, तुमने कहा 3 sin x प्लस 4 cos x, तुमने कहा कोई परेशानी नहीं। और मैंने कहा बेटा अगर x की वैल्यू में 180 ले रहा हूं, तुमने कहा इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तुमने कहा अच्छा इसमें ये क्या हो जाएगा, तुमने कहा बेटा ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x। तुमने कहा ओके बेटा अगर मैं x को मैं मान लेट कर रहा हूं x इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा ये 3 इक्वल r cos थीटा एंड 4 इक्वल r sin थीटा। अच्छा बेटा तो ये y कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ये हो गया 3r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x। ओके दैट इज y इक्वल कितना हो गया, r sin x प्लस थीटा। ओके और यहां से भी बेटा वही r इक्वल y इक्वल कितना 3 cos थीटा sin x माइनस r sin थीटा cos x। y इक्वल कितना, यहां पे r, तो बेटा r sin x माइनस थीटा। तुमने कहा अच्छा बेटा। अब बेटा देखो x की वैल्यू यहां पे जो अपन देख रहे हैं इसको इससे डिवाइड करें तो tan थीटा कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा tan थीटा आ रहा है 4/3, तो थीटा 53 डिग्री आ रहा है। तुमने कहा अच्छा 53 डिग्री आ रहा है बेटा, थीटा 53 डिग्री आ रहा है। तुमने कहा ये थीटा तो 53 डिग्री आ रहा है, तो अगर मैं यहां पे थीटा, तो मतलब मैं इसको ऐसे कह दूं y इक्वल r sin x प्लस 53 डिग्री।
तुमने कहा, और इसको अपन ऐसे कहते हैं वाई इक्वल आर साइन एक्स माइनस 53 डिग्री। तुमने अब बिल्कुल कह दो बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा देखो, मुझको इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ को ध्यान से देखें। अगर ग्राफ आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा वाई इक्वल 4। ओके, वाई इक्वल 4 बेटा, तुमने कहा यस, ये एक्स इक्वल 0। अब बेटा एक्स इक्वल 0 पे ये एक्स इक्वल 0, ये x इक्वल 0 बेटा, और ये x इक्वल पाई। तुमने कहा यस, x इक्वल पाई, इन दोनों पे वैल्यू y इक्वल 4 है। अब बेटा देखो, इसका जो खेल बनने वाला है, अब मैंने कहा बेटा अगर मैं x की वैल्यू 90 से 180 के बिटवीन रखता हूँ, x की वैल्यू 90 से 180 के बिटवीन रखता हूँ, तो बेटा ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब यहाँ पे 37 डिग्री होगा। 37 डिग्री होते ही बेटा ये कितना होगा, 37 प्लस 53, तो बेटा कितना हो गया 37 प्लस 50, 90, साइन 90 कितना 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी r, और r कितना है बेटा, तुमने कहा r तो 5 है। ओके, r 5 है। तो बेटा ये वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगी, x की वैल्यू 0 से बढ़ता हुआ, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता हुआ, फिर कम होगा, कम होते ही बेटा फिर कम होते हुए जाएगा, और फिर वापस बढ़ता हुआ ऐसे y इक्वल बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा बेटा, इस तरह से। देखना, ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू किस पे दी, तुमने कहा बेटा x इक्वल 37 डिग्री। तुमने कहा अच्छा 37 डिग्री पे इसने मैक्सिमम वैल्यू दी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तुमने कहा मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी, तुमने कहा मैक्सिमम वैल्यू है y इक्वल 5। ओके, y इक्वल 5 मैक्सिमम वैल्यू। अब बेटा उसके बाद ये कम होने लगेगा। तुमने कहा अच्छा उसके बाद ये कम होने लगेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, उसके बाद ये कम होने लगेगा, कम होते 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 यहाँ पे बेटा ये कम हो जाएगा। कहाँ पे बेटा, ये कब तक कम होगा, तो नेक्स्ट इंटरवल में कम होता जाएगा। तुमने कहा अच्छा नेक्स्ट इंटरवल में कम होगा, मुझे कहाँ तक चलना है बेटा, 90 तक चलना है। तुमने कहा अच्छा 90 तक चलना है, तो 90 अगर मैंने यहाँ 90 रख दिया, तुमने कहा 90 प्लस 53 143 143 डिग्री 143 डिग्री। तो बेटा अगर मैं 143 डिग्री वैल्यू रखूँ तो 90 प्लस 53 दैट इज कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी, तुमने कहा कॉस 53 डिग्री। मैंने कहा हाँ बेटा cos 53 डिग्री की वैल्यू, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। तुमने कहा अच्छा मींस 90 पे वैल्यू बेटा ये अगर x इक्वल 90 डिग्री है तो वैल्यू बेटा ये आ गई। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा आगे फिर चलता हूं, अब 90 से 90 माइनस 53 तो 37। तुमने कहा अच्छा साइन 37। अब बेटा ये वापस वैल्यू बढ़ने लगेगी। तुमने कहा अच्छा वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ। अब देखो बेटा, अब 90 से लेकर 180 तक मेरा ग्राफ जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर वापस ऐसे बढ़ता हुआ फिर नीचे आएगा। तुमने कहा यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ किसका है, तुमने कहा बेटा ये ग्राफ तो 0 से 90 के बिटवीन है। अच्छा बेटा अब देखना, मेरे को ग्राफ बनाना है 90 से 180 के बिटवीन। तुमने कहा 90 से 180 के बिटवीन बनाना। अब बेटा बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, तुमने कहा ये 90 डिग्री हो जाए तो। अच्छा 90 डिग्री हो जाए मतलब x की जगह अगर मैं 143 डिग्री रख दूं तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तुमने कहा यार मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनने वाला है, ये वैल्यू वापस बढ़ाते हुए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तुमने कहा यस, और ये वैल्यू किस पे अटेंड करेगा मैक्सिमम। तुमने कहा बेटा अगर मैंने x की जगह क्या रखा 143 डिग्री रखा, 143 मैंने कहा हाँ 140, तो x इक्वल 143 डिग्री रखूंगा तो ये वापस यहाँ से बढ़ता हुआ बढ़ता जाएगा बेटा वैल्यू। तुमने हाँ यार ये वैल्यू तो बढ़ती जाने वाली है। तुमने कहा ठीक है बेटा ये वैल्यू बढ़ गई, और फिर वैल्यू बढ़ने के बाद वापस अगर मैंने रख दिया बेटा यहाँ तक मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, तुमने कहा 180 रख सकता हूँ। 180 तो 180 माइनस 53 तो फिर नीचे आएगा, और बेटा वैल्यू वापस नीचे आती हुई वैल्यू ये आ जाएगी। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब आप देखो बेटा कि मिनिमम वैल्यू किस पे अटेंड की, ये वाली, मैक्सिमम कितनी, ये वाली, ये वाली। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा आराम से वापस से सुनना ध्यान से, पहले 0 से 90 का केस देखना। ये 90 डिग्री किस पे, 37 पे, तो 0 से 37 तक बढ़ता गया, फिर 37 से 90 तक कम हो जाएगा। अच्छा फिर 90 से 143 वापस बढ़ेगा, और फिर 143 से फिर कम हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा वापस पाई पे तो वैल्यू कितनी आनी है, y इक्वल 4 आनी है। कब, जब x इक्वल पाई हो।
तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब यहां से ये बढ़ा और फिर वापस बढ़ता गया। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ग्राफ इसका है जो इस तरह का बढ़ रहा है। तो मुझे इसकी रेंज कितनी बताओ। तो तुमने कहा बेटा इसकी जो रेंज है, मैंने कहा हाँ इसकी रेंज, तो रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू कितनी। तुमने कहा बेटा मिनिमम वैल्यू तो 3 आएगी। तुमने कहा किस पे आएगी। तुमने कहा 90 पे वैल्यू। तुमने कहा अच्छा मिनिमम वैल्यू 90 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी। तुमने कहा मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी। ओके 3 to 5, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 3 to 5। अब तुमने कहा सर इतनी रामायण आपने कर दी, दिमाग खराब हो गया हमारा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच आपको बताना चाहिए, लेकिन तुमने कहा नहीं सर हम इस तरह से नहीं जाना चाहते। तुमने कहा अच्छा तुम इस तरह से नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं हम, तुमने कहा नहीं सर हम इस तरह से नहीं जाएंगे। मैंने कहा बेटा इस तरह से नहीं जाओगे तो फिर कैसा लगेगा। तुमने कहा भाई हमें इस तरह से नहीं जाना है। तो उन्होंने ठीक है बेटा इस तरह से हम नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पे मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। भाई इसका पीरियड कितना, पाई पाई। तुमने कहा पाई, तो बेटा 0 पे वैल्यू कितनी। तो तुमने कहा 0 पे वैल्यू बेटा कितनी 4, पाई पे वैल्यू कितनी 4। अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो बेटा 3 sin x प्लस 4 cos x। तुमने कहा 3 sin x प्लस 4 cos x, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी। तुमने कहा 5। अच्छा तो 5 मैक्सिमम हो गई। और बेटा इनके बीच में 0 और पाई पीरियड है ना, तो उसके बीच में π/2 देखते हैं। तो sin π/2 कितना 1, तो ये 3, और cos π/2 कितना 0, तो 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी 3, किस पे π/2 पे, और फिर वापस बढ़ती हो जाएगी। तो बेटा ये वैल्यू लाई किसके बिटवीन करेगी। तुमने कहा 3 और 5 के बीच में। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है, उसने कहा मुझे इस क्वेश्चन को देखना है, मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। बट tan x और cot x में कोई रिलेशन होता है क्या। तुमने कहा tan x और cot x में। मैंने कहा हाँ बेटा tan x और cot x में। मैंने कहा बेटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। और जब भी याद रखना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का सीन आए तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाना। और क्योंकि इसने कहा a और b पॉजिटिव है 0 से π/2, तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो मैंने कहा बेटा इफ x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तुमने कहा अच्छा अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मींस x1 प्लस x2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट ऑफ x1 x2। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा यहां भी मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर रहा हूं। तुमने कहा यस। तो मैंने कहा a tan x ये एक पॉजिटिव है, प्लस b cot x ये भी पॉजिटिव है, ये अर्थमेटिक मीन इसका होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट ऑफ a tan x इंटू b cot x। तुमने कहा यस। बेटा यहां से a tan x प्लस b cot x इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab। तुमने कहा अच्छा 2 रूट ab। मैंने कहा तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। तुमने कहा बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 रूट ab आ गई। दैट मीन्स रेंज इज व्हाट, रेंज बिलोंग्स टू। तुमने कहा बेटा रेंज बिलोंग्स टू 2 रूट ab टू इनफाइनाइट। दिस इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। बेटा sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर को एक साथ कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसको ऐसा कह दूं बेटा a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स को मैंने कहा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड cosec स्क्वायर एक्स 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ओके, सो हियर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स। तुमने कहा अच्छा अच्छा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। मैंने कहा यस बी स्क्वायर कॉट। अब बेटा इन दोनों में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। That is a square tan square x plus b square cot square x is greater than equal, is 2 is cross multiplied 2ab। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये 2ab आ गया। मैंने कहा हाँ बेटा ये 2ab आ गया।
मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 2ab। अब बेटा देखो मुझे तो इस पूरी की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे क्या ऐड करना है इसमें। तुमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किया प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट इज y is greater than equal a plus b whole square। इसका मीनिंग रेंज क्या हो गया? तुमने कहा रेंज इज बिलोंग्स टू a plus b whole square to infinite। This is your solution। I think it is clear now। अब मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। ओके, यू वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मैंने कहा यस, वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एक सिंपल वे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। साइन स्क्वायर वाई माइनस 2y इक्वल 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। सो साइन स्क्वायर एक्स y माइनस 3 इक्वल 2y प्लस 5। सो साइन स्क्वायर एक्स is equals to 2y plus 5 upon y minus 3, and sine square x is between 0 to 1, means 2y plus 5 upon y minus 3 is between 1 to 0। ओके, अब दोनों को इक्वेट करना है। ये बेटा रियल वैल्यू यहाँ से यहाँ, पहले इसको देखता हूँ, मैंने इसको देखता हूँ। 2y प्लस 5 अपॉन वाई माइनस 3 इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। एक ये देखे, एक इसको देखे, 2y प्लस 5 अपॉन वाई माइनस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। सो 2y प्लस 5 माइनस वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। दैट इज y प्लस 8 अपॉन वाई माइनस 3 इज लेस देन इक्वल 0। तुमने कहा यस, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तुमने कहा अच्छा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब बेटा इसको देखें, बेटा इसकी वैल्यू कैसी है? तुमने कहा इसकी वैल्यू चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा इसकी वैल्यू। बेटा ये 2y प्लस 5 वाई माइनस 3, तो y इक्वल 3 आ रहा है और एक माइनस वाई माइनस 5/2 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट तो है बेटा पॉजिटिव में। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा y प्लस 8 अपॉन वाई माइनस 3 इज लेस देन इक्वल 0। लेस देन इक्वल 0 का मीनिंग समझते हो? तुमने कहा यस, तो y इक्वल 3 इज हियर और y इक्वल माइनस 8 यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा माइनस में। ओके, तो बताओ बेटा दोनों में कॉमन रीजन क्या दिख रहा है? तुमने कहा कॉमन रीजन दोनों में, मैंने कहा हाँ, तो माइनस 8 टू कॉमन रीजन दिखाओ बेटा। तुमने कहा कॉमन रीजन मीन्स y बिलोंग्स टू, यहां से मैं कह रहा हूं y बिलोंग्स टू, दोनों में कॉमन माइनस 8 टू माइनस 5/2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, माइनस 8 टू माइनस 5/2। तुमने कहा यस। अब तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड? मैंने कहा अच्छा अल्टरनेट मेथड चाह रहे हैं? मैंने कहा यस, वी वांट अल्टरनेट मेथड। ये एक तो अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, ये भी वेरी गुड अप्रोच, लेकिन तुमने कहा सर इसका अल्टरनेट मेथड बताओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, हम इसका अल्टरनेट मेथड भी सर्च करते हैं। बेटा मुझे इसकी रेंज चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज चाहते हैं? मैंने कहा यस, मैं इसकी रेंज चाह रहा हूँ। तो तुमने कहा y इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। मैंने कहा बेटा ये इसको ऐसे कह दूँ बेटा मैं 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 प्लस 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2।
that is y is equals to 3 sin square x minus 2 upon sin square x minus 2 plus 11 upon sin square x minus 2. ये बेटा कैंसिल, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा मुझे y की वैल्यू चाहिए, अब डायरेक्ट मैं इसकी फाइंड करूंगा वैल्यू। तुमने कहा अच्छा इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करूंगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी, तुमने कहा 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो 3 - 11 दैट इज -8।